Good morning, student. Today we are discuss next chapter, and this is square and square roots. Square and square roots. And first slide is a square number. Square number. The number you get when you multiply by itself. Square number क्या होते हैं? The number you get when you multiply itself. Itself means जब सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर. जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 into 4 is equal to 16. 4, this is the number, and itself means you multiply by 4 again, then you can get 16. And so 16 is the square number, and the 16 is the square number of 4. You have multiplied by 4 and 4 two times, then you can write also 4 square is equal to 16. In previous class you have done very well. What are the square numbers? Next next example, if we take 0, so you can multiply 0 into 0, get 0. You write it like that, 0 square is equal to also 0. 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा. नेक्स्ट हम ले लेते हैं 4. 2 multiply by itself means multiply by 2 is equal to 2 into 2. How much? It is 4. And there are 2 times of 2, so you can write 2 square is equal to 4. You can write like this. Okay. And the next is 9. 3 into 3. 3 multiply by 3, then you get 9. 4 multiply by 4, then you get 16. And this is also written as 4 square, 3 square, 2 square, and 0 square. So स्क्वायर नंबर, आई होप आपके समझ में आया होगा. स्क्वायर नंबर क्या होता है? जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए. जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर क्या होता है? स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर. Perfect square means if you have a square any number, then you get perfect number, so you call that this is the perfect square. Like there is the example 3 square is equal to 9. 3 square means 3 into 3 and you get 9. Area of which, जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा है, आप बताना चाहेंगे किस कौन सा फिगर है, कौन सा अगर आपको याद हो. प्रीवियस क्लास में आपने ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन में ये सब पढ़ा था. तो ये आपका स्क्वायर है. स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a इंटू ए, यानी साइड स्क्वायर. ऐसा ही कुछ बताया था हमने. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर. तो साइड स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर. नेक्स्ट if we take 5, then 5 into 5 is equal to 25. In this figure you have seen that there is a boxes. If you count these boxes you get 25. So we count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25. We started from 1 and get 25, and your answer is also 25, and the side is 5 and 5. And if you count these boxes you also find 9. Okay.
that's called the perfect square. Let's discuss the definition of the perfect square. If a number is ends with 2, 3, 7 and 8, please note down these numbers. If a number ends with 2, 3, 7 and 8 at units place आपको पता ही होगा. So 2, 3, 5, 7, there is first number is unit, tens, hundreds and then thousands. You know very well, this is the question from the class 6, so you know very well where is the unit digit, where is the tens digit, very well. So if a number is ends with 2, 3, 7 and 8 at units place, so it must not be a square number. So it's not be a square number. इसका कहने का मतलब क्या है, अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है लाइक 132, 72, 28, तो अगर लास्ट में 2 है, 3, 7 या फिर 8 है, तो ये क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. अगर किसी भी नंबर के लास्ट में मान लो 1, 5, 6, 7, तो यूनिट डिजिट में क्या है 7, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज इट्स कंसिस्ट 7 in unit place. Okay, so you just remember these numbers 2, 3, 7, 8. अगर ये किसी के भी लास्ट में आते हैं तो आपको पता हो जाना चाहिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नेक्स्ट, इफ ए नंबर एंड्स विद 1, 4, 5, 6 and 9 at unit place, so it may be a square number. अब 1, 2, 3, 5, 8 तो निकल गया. अब इसके बाद जितने भी नंबर बचे हैं 1, 4, 5, 6, 9, ये नंबर अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 1, अगर ऐसा किसी के लास्ट में 1 डिजिट है तो ये मे बी स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं. तो ये चीज आप याद रखना. जैसे कि 81, ये 1 आया तो अब ये स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. से हम लिख दे 25, यूनिट डिजिट पे क्या है 5 है. हम लिख दे 64, यूनिट डिजिट पे क्या है 4. सो ये क्या होंगे, स्क्वायर हो भी सकते नहीं भी हो सकते. जैसे कि एग्जांपल में ले लिया 16 की यूनिट डिजिट में क्या है 6 एंड 15 की यूनिट डिजिट में क्या है 5. तो ये स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. तो जैसे 16 में लिया तो ये यस है, क्योंकि 6 को क्या 4 into 4 लिख सकते हो, लेकिन 15 को आप 5 into 3 लिखोगे. और स्क्वायर की कंडीशन क्या थी, इफ नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, यानी 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तभी क्या होगा, वो स्क्वायर होगा. आई होप आपको ये समझ में आ गया. वी जस्ट मूव द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट स्लाइड इज प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर. अभी जो मैंने बात की है, अभी हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेंगे. Properties of unit digit of a square number. First square मतलब 1 into 1 is equal to, you gets always 1. When you multiply 1 itself by 1, then you can get 1. If you multiply by 9 into 9, you get 9 9s are 81. If you see that in the last unit digit you get 1. So if a number has 1 or 9
in the unit place, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 1 या फिर 9 है, देन इट्स स्क्वायर एंड्स विद 1, तो हमेशा स्क्वायर क्या होगा इसका 1 इसका जो स्क्वायर एंड होगा उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा, हमेशा 1 होगा। कैसे, अभी आपने देखा 9 का स्क्वायर किया तो कितना आया था 81, इसके यूनिट डिजिट में क्या आया था 1। अगर हम लोग 1 को हो गया 1 एंड 9 19 का अगर हम लोग स्क्वायर निकाले तो 19 इंटू 19, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, अगर आप ये करोगे तो कितना आएगा 361। यू कैन सी दैट द यूनिट डिजिट यू कैन फाइंड 1। सो इफ in the end of a number there is 9 or 1, then you can get, then its square ends with 1. If we have multiply 11 into 11, then you get 121, और आप देख सकते हैं इसके यूनिट डिजिट में क्या है 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी नंबर 1 और 9 उसके यूनिट डिजिट में है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो हमेशा उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट 2 एंड 8, अब हम लोग 2 और 8 की बात कर लेंगे। 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, एंड 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। देन यहाँ पे क्या करेंगे, इफ अ नंबर हैज 2 और 8 इन द यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस आपको पता ही होगा 2 3 1 5 अगर लिखा है तो ये क्या होता है यूनिट, ये टेंस, ये 100, ये 1000 यूनिट प्लेस, देन इट्स स्क्वायर एंड्स विद 4। अब यहाँ पे क्या है, अगर 2 या 4 किसी के यूनिट डिजिट में है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो एंड होगा, तो उसके यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। हम लोग करके देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने 2 एंड 8 का दिया है, हम लोग 12 का करके देखते हैं। 12 स्क्वायर मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाई 12, you get 144, and you see that in the unit place there is 4, no? Means this condition is true. Next, there is 18, so we multiply, we can find the square 18 square, so 18 into 18 you get, if you multiply 8 into 8 you get 64, यूनिट डिजिट में आपका क्या आएगा 4। तो इन दोनों में क्या है, अगर 1 और 9 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में हमेशा 1 होगा, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। अगर 2 और 8 है तो उसके यूनिट डिजिट में हमेशा 4 आएगा। नेक्स्ट, if there is 3 or 7, if a number has 3 or 7 in the unit place, then its square ends with 9। अगर किसी भी प्लेस में अगर 3 और 7 उसके यूनिट डिजिट में है तो वो हमेशा स्क्वायर उसका 3 और 9 से ही, और इनका ये जो भी हम बता रहे हैं इनका आपकी एक्सरसाइज में बहुत ही रोल है। सो लेट्स वी सी, 3 into 3 equal to 9, this is the 9 and it's always also 9. 7 into 7 you get 49, and unit place it 9, so this condition it is true. We take an example, 13 into 13, unit digit में 3 है तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू 13, if you multiply by both then you get 169, and you see that in the unit digit there is 9, so this condition is true. If we multiply 17, if we find the square of 17, then 17 is equal to into 17 is equal to 289, and in the unit place you see that there is 9. Okay student, I hope ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी डिजिट के यूनिट में 3 और 7 है तो हमेशा
नो ही आएगा। नेक्स्ट इज 4 and 6. If any number ends with 4 or 6, then if a number has 4 or 6 in the unit place, then its square ends with 6. पर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 4 और 6 है तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 6 होगा। फॉर एग्जांपल 4 square 4 into 4 is equal to 16, and you can see that there is 6. Next is 6, then 6 into 6 is equal to 36, and the unit place is 6. Okay, so these are the basic rules, और ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये याद है तो आपको स्क्वायर आता भी नहीं होगा, तब भी आप क्वेश्चन देख के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इवन एंड ऑड्स ऑफ स्क्वायर। इवन स्क्वायर एंड ऑड्स स्क्वायर ये क्या होते हैं आपको पता होगा। इवन मतलब इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 8, 6, 10। जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। एंड ऑड नंबर्स क्या होंगे? 1, 3, 5, 7। ऑड नंबर्स वे होते हैं जो केवल अपने आप से इटसेल्फ और 1 से डिवाइड होंगे, डिवाइडेड बाई 1 और इटसेल्फ, then these numbers called odd numbers. If a number is odd, so its square is also odd. अगर कोई नंबर odd है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? odd. If a number is even, so its square is also even. अगर इवन नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर हमेशा इवन आएगा, अगर ऑड नंबर के स्क्वायर करोगे तो हमेशा वो ऑड में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 इज अ इवन नंबर। इफ यू square, if you do the multiply 4 into 4, then you get 16, and this is also a even number. If you want to find the square of 5, then you multiply 5 into 5 and you get 25. This is also a odd number. You can do with cell 2, 3 and 4. Next is odd numbers of zeros. If a number ends with odd numbers of zeros, then it is not a perfect square. Odd number जैसे अभी आपको हमने बताई, odd number क्या होते हैं? 1, 3, 5। So here is the example number first, 30. परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो है जो कि ऑड है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, देयर इज द 3, 0, दिस इज द आल्सो ऑड नंबर। एंड एग्जाम्पल नंबर 3, देयर इज द 5, 0, दिस इज आल्सो ऑड नंबर। So is also not a perfect square. Zeros in the square numbers. If a number contain 1 0 at the end, so 2 zeros will have its square. It means अगर किसी भी नंबर में एक जीरो है और अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो उस स्क्वायर में 2 0 आपको मिलेंगे। If contains 1 0 at the end, so 2 zeros will have its square. It means the number contains zeros will double zeros of its square. And the second is 5000, square of 5000. There is the 3 0. So how many zero you get? 6 zeros in its square. आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।